ये 20 रुपीज़ अगर आपको किसी को भी देने हैं तो आई होप आपको मालूम होगा वाई यू आर गिविंग दिस 20 रुपीज़ टू दैट पर्सन। क्या आपको कोई चीज़ खरीदनी है या उसकी हेल्प कर रहे हो? आई होप जब आप अपना 20 रुपीज़ भी किसी को देते हो तो आपको मालूम होता है कि आप ये क्यों दे रहे हो। सो वेन यू डिसाइड योर करियर, why don't you ask yourself the question why I am entering into CA, why I am entering into CS? Why don't you question yourself? Hello and welcome back to our YouTube channel and you are watching CS Thanvi Sisters. आपको ये तो मालूम ही होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एंड इट रियली टेक्स गट्स टू स्पीक रियलिटी ऑन रील। और इस वीडियो में इसी वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम रियलिटीज ऑफ द CS कोर्स विच इज गोइंग टू हेल्प you to take an informed decision about your career and do not fall into the trap of social media. Number one, company secretary course is not interesting. Yes, it is not interesting. You have to develop the interest. Have you ever seen a child saying that कि उसका dream है CS बनना? एक बच्चे का ड्रीम क्या हो सकता है? It can be to become a pilot, to become astronaut, to become a teacher, to become a doctor, to become a dancer, to become an actor, to become a singer. But have you ever heard a child saying that I want to be a company secretary? So these courses, whatever I'm saying, these are not something which people chase that they want. These are something wherein you have to develop the interest. Now आप में से भी कई सारे लोग वेबिनार्स और सेमिनार्स सुन के ही इस कोर्स में एनरोल हुए होंगे, wherein you might have heard that इस कोर्स के बाद you will have a very luxurious life, lot of money, lot of success and all that. ये सब से ही आप एनरोल हुए। आपने नाम सुने होंगे देव बाजपाई के, सावित्री पारिक के, और ये सब सुन के आप एनरोल हो गए। बट आज आप खुद सोचो, इफ़ यू आर इनटू दिस कोर्स बिकॉज ऑफ द सक्सेस of Dev Bajpai that you also want in your life, just tell me, do you know even 1% of what work Dev Bajpai is doing? You are just attracted to his money. यस, सो आपको CS का क्या काम है उससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है विच इज़ मनी। तो मनी तो आप कैसे भी अर्न कर सकते हैं। सो उसके लिए वाई ओनली CS, वाई यू जॉइंट CS, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए एंड यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्ट। डोंट थिंक कि एक दिन कोई मिरेकल हो जाएगा और मेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। नो, यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट, ओनली देन यू कैन गिव योर बेस्ट। The next one is that some people who are already a CS, वो social media पे कुछ ऐसा फैला रहे हैं, they are glorifying their life after becoming a company secretary, which is absolutely not true. Their life is glorified might be because their parents are from the business class or because they got fame on social media. That is why they are having a glorified life. Good for them. But please understand, I don't like when people send wrong messages to the upcoming students, to the upcoming aspirants, saying that कि CS बनने के बाद you will have such a glorified life. No, it will again test your patience. You will need some 3, 4 or 5 years after getting your degree, and then you can think of getting good money and good success in your life. Absolutely not fame, but yes, money wise you will get success after some years in your life. And उसके साथ में struggles भी आते हैं. Whenever you see a person who is earning very good, वो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तभी वो उतना अच्छा earn कर पा रहा है। Okay, so you definitely have to understand these realities. Generally ऐसा ही बोलते हैं कि CS बनने के बाद even I have witnessed that you have only 2 choices. As a company secretary you have only 2 choices. That is, या तो you can go in practice या फिर you can go in employment. Now what I am personally doing, I am into teaching. I have not selected employment or practice. I am into teaching. But that is my personal choice. अगर आप CS बनने के बाद कुछ करना चाहते हैं so आपके पास ये 2 options रहते हैं. One is practicing CS and one is employment CS. Now what is practicing CS exactly? आप क्या करोगे CS बनने के बाद? Your own business, right? Your own business wherein you are providing the compliance or the other incorporation of company related services to your clients. Now जस्ट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो मेजोरिटी केस में होता है, आपको CS एग्जाम पास करते करते आपकी एज हो गई है 25 और 26. नाउ आई एम नॉट मेकिंग इट very dramatic, but yeah, it is the truth that majority people become CS at the age of 24 or 25 or 26. Very few people become CS at the age of 21 or 22. तो अगर आपको CS बनते बनते आप 25 या 26 साल के हो गए हैं and if you belong to a middle class family, will your parents allow you to give more 3 years
फॉर डूइंग योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस तो बेटा बिजनेस है. आप आज चालू करोगे, इन्वेस्टमेंट पूरा लगेगा, पैसा कुछ नहीं आएगा, पैसा आने में टाइम लगता है. So are your parents and you yourself, forget about parents, are you yourself ready to give 3 more years in struggle investing money and not getting the desired results? If yes, then you can go for practice. If not, तो middle class families के लिए बेटा एक ही ऑप्शन रह जाता है, which is employment. ठीक है. और when you are a fresher CS, do not expect some miraculous salary from the corporates. ऐसा कुछ भी नहीं है. Yes, but धीरे धीरे करके when you are into the same company for some good years and you have given a good contribution to the company, definitely you will get a very good salary, a very good package. But remember this thing, जो बच्चा या जो पर्सन दिमाग में ये सोचता है दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू जॉब, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, तो दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू बेटा, बिकॉज CS इज़ नथिंग बट अ हाई पेइंग जॉब. आप CS करने के बाद आप कहीं के कोई बॉस नहीं बन रहे हैं. इट विल बी जस्ट अ हाई पेइंग जॉब वेर यू विल गेट अ गुड पैकेज. सो इफ यू आर ऑफ अ माइंड सेट दैट आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, देन कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट फॉर यू. ओके, नाउ डूइंग जॉब इज नॉट अ स्मॉल थिंग. मेनी पीपल थिंक दैट कि जॉब करना मतलब नौकरी करना होता है. नो, नथिंग लाइक दैट. बिजनेस एंड जॉब बोथ आर वेरी गुड, चॉइस इज योर्स. और सक्सेसफुल बनने के लिए बेटा आपको दो चीज़ें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करनी है. या तो आप मेहनत करके अपना खुद का कुछ स्टार्ट करिए एंड बिकम योर ओन बॉस, या फिर आप अपना जो भी आपका जॉब का प्लेस है, वट एवर इज़ योर वर्क प्लेस, वट एवर इज़ योर कंपनी, बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई कि आपके बिना आपके एम्प्लॉयर को ना नींद नहीं आनी चाहिए रात को. जैसे कि आपने स्टोरीज तो सुनी होंगी ना अकबर और बीरबल की. उसमें बीरबल वॉज नॉट एन एम्प्लॉयर, ही वॉज नॉट अ बॉस, ही वॉज एन एम्प्लॉई. बट क्या बीरबल की एडवाइस के बिना क्या अकबर कुछ भी कर पाता था? नो. सो इफ यू कांट बी योर ओन बॉस, बिकम सच अ गुड एम्प्लॉई दैट योर एम्प्लॉयर कांट वर्क विदाउट यू. तो आपके पास में ये दो ऑप्शंस होते हैं. सो अगर आपने एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनने का ठाना है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की चमक धमक से तो आप वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं बनोगे. उसके लिए आपको अपने काम से ना प्यार करना पड़ेगा. और काम से प्यार करने के लिए यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन वॉट यू आर डूइंग. एंड इवन आफ्टर गेटिंग अ डिग्री ऑफ CS, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रीड द प्रोविजंस, द अमेंडमेंट्स, वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग in the law, and keep yourself updated and become the best employee. So here I have given you a complete transparent view about the CS course. After knowing all these realities, if you feel like that yes, you are the best fit for the CS course and you can become the Birbal of any big giant company, then please beta, जो course में आप enrolled हो ना, give your 2000% in that. और अपना age से इतना भी ज़्यादा प्रेशराइज मत हो जाना कि आप अपने गोल को ही छोड़ दो. अगर आपको CS करते करते अगर आपका एज 24, 25, 26, 27 भी हो गया ना, डू नॉट लेट द प्रेशर ऑफ मैरिज लीव योर ड्रीम्स. ये सिचुएशन में नहीं आना है. एनी हाउ यू शुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड अचीव वॉट यू वॉन्ट. क्योंकि अगर आपको आफ्टर नोइंग ऑल द रियलिटीज, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, अगर आपको लगता है दैट यू आर द बेस्ट फिट फॉर CS और आपने दिमाग में ठान लिया दैट यू वॉन्ट टू टेक इट, यू वॉन्ट टू बिकम अ CS, एंड अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ यू योर सेल्फ और एनीबडी एल्स, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाए लाइफ में, तो दिमाग में एक ऐसा बैठ जाएगा कि मैंने क्विट किया था. सो लाइफ टाइम वेन एवर यू टेक एनी डिसीजन, यू विल हैव अ सेल्फ डाउट ऑन योर सेल्फ कि कहीं मैं इस बार वापस तो कोई रीज़न से क्विट नहीं कर दूंगी. सो मेक श्योर कि इफ यू आर इन टू दिस, डू नॉट क्विट, बिकॉज इट क्रिएट्स अ माइंड सेट दैट आई विल क्विट अगेन एंड अगेन. सो ये मेरा एडवाइस रहेगा. अगर आपको लग रहा है दैट यू आर अ बेस्ट फिट फॉर द कोर्स, do it, give your 1000%, do not let age or anything come in between, and give your best. Hope this video was useful for you and you will use this information in taking a wise and a best decision for yourself. I will see you soon in the next video.